اب میرے حالات بدل دے، خدا مجھے لے لے۔ جو چیز اس کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے میرے بھائیوں وہ پاک ہو جاتی ہے، میری بہنوں وہ مقدس ہو جاتی ہے۔ اس کے ہاتھوں میں آنے والے لوگ پہلی حالت میں نہیں رہتے، وہ جس حالت میں آتے ہیں اس حالت سے بدل کر بہتر حالت میں جاتے ہیں۔ اس کے ہاتھوں میں اگر چند روٹیاں آ جائیں وہ ہزاروں کو سیر کرنے کا وسیلہ بن جاتی ہیں، اور اس کے ہاتھوں میں اگر کوئی بیمار آ جائے تندرست ہو جاتا ہے، اگر اندھا آ جائے آنکھیں کھل جاتی ہیں، اگر بہرا آ جائے کان کھل جاتے ہیں، اگر گنگا جس بولنے والا بن جاتا ہے، اگر میرے شیشو جکڑا ہوا آ جائے تو بحال ہو جاتا ہے، اگر مردہ آ جائے تو خدا ان کے لوگوں وہ زندگی لے کر جاتا ہے۔ کیونکہ زندگی کے منبع کے ساتھ ملاقات جب ہو جاتی ہے، جب یسوع کرے رہا تو بیڑیاں کھل جاندیاں، جب خون اودا لے لا تو بدیاں تل جاندیاں۔ ہاللویا ہاللویا۔ ہم کہتے ہیں ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم گیت گاتے ہیں آپ جڑے بجے نے کسے نو کی کھولن، پتھر تے مٹی دے رب کی میں بولن۔ جدو خون اودا لئیے لا تے بدیاں تل جاندیاں، جدو یسوع دوے ہاتھ لا تے اکھیاں کھل جاندیاں۔ ہاللویا۔ آج واقعی یسوع یہاں پر موجود ہے؟ واقعی آپ یقین کرتے ہی یہاں پر موجود ہے؟ آئیں پھر ہم چند لمحے اس کو کہیں خدا اس سے بغل گیر ہو جائیں، امان کی آنکھوں سے اس کو آئیں بغل گیر ہو جائیں، اس کو چھو لیجئے، اس کو جانے نہ دے۔ جس طرح یعقوب نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے گا تب تک میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ جب تک تو مجھے برکت نہ دے گا، اس نے بڑا کہا مجھے چھوڑ دے، اس نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ آج آپ کے درمیان خدا موجود ہے، آپ کہیں خدا میں آج پہلی حالت جس طرح آئی ہوں اس حالت میں نہیں جانا چاہتی، میری زندگی بدل جائے۔ خدا باپ میں پاک ہو کر میں بہتر حالت میں جو تیری مرضی کے مطابق ہے اس حالت میں جانا چاہتی ہوں۔ میری نمازیں، روزے، ریاضتیں، رفاقتیں، شرافتیں تیری مرضی کے مطابق۔ میرے بھائیوں خدا آپ کی پوری توجہ چاہتا ہے، جس طرح آپ چاہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہو، لیکن آپ کا خدا جو آپ کو پیار کرتا ہے وہ آپ میں کسی چیز کی کمی نہیں دیکھتا۔ وہ کہتا ہے کہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ کیوں نہ رہے؟ کیونکہ خدا کہتا ہے میں پاک ہوں اس لیے پاک ہو۔ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک ہو۔ وہ پاک خدا ہے اس لیے آپ کو اس حالت میں بلا رہا ہے، وہ اس کے اندر کمی کوئی نہیں ہے، اس کے اندر ہر طرح کی خوبیاں ہیں، وہ آپ کے اندر بھی خوبیاں دیکھنا چاہتا ہے۔ مقدس کلیسیا کے اندر، مقدس لوگوں کے اندر وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ اپنا آپ دیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میری مانند بنو۔ یسوع مسیح نے کہا نا تم میری مانند بنو، میں باپ کی مانند ہوں تم میری مانند بنو۔ ہم دنیا کو تو فالو کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم یسوع کو فالو کرنا شروع کر دیں، ہماری دنیا تبدیل ہو جائے گی، ہمیں دنیا تبدیل نظر آئے گی، ہمارے حالات بدلے ہوئے نظر آئیں گے، ہمارے نظریات ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارا سوچنا بہتر ہو جائے گا۔ خدا ان کے لوگوں لکھا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر، پورے دل نہ روزہ رکھنا ہے، اور اگلی بات کہتا ہے پورے دل اور روزہ رکھ کر اور گریہ زاری ماتم کرتے ہوئے۔ آگے بڑی خوبصورت بات ہے کہ میری طرف رجوع ہو، رجوع ہونا۔ جب رجوع ہوتے ہیں اس میں ایک اصطلاح ہے اسلامی نظریہ میں جو عورت
उस मर्द को अपने को छोड़ देती है, फिर जब उसकी तरफ आना होता है तो वो उस चीज को पूरा करती है और फिर अपने शोहर की तरफ वो दोबारा आ सकती है। काफी इसमें और भी बातें हैं, लेकिन शॉर्ट वर्ड में बता रहा हूं कि आप भी जब खुदा की तरफ आना चाहते हैं, खुदा जो आपका बाप है और यीशु मसीह जो कलीसिया का दुल्हा है, इसी तरह दुल्हन अगर फिर मसीह की बनना चाहती है ये कलीसिया, तो फिर क्या करना है? फिर अपनी उस सोच को पीछे करना है, अपना वही इख्तियार लेने के लिए। अक्सर हम कहते हैं खुदा जिस तरह तू मुकद्दसों के साथ जिस तरह इब्तिदाई कलीसिया में काम करता था, खुदा आज मेरे साथ कलाम कर, मेरी जिंदगी में काम कर, मुझे खुदा बोलना सिखा, खुदा मेरे साथ कलाम कर, खुदा मेरी जिंदगी बदल दे, खुदा ये कर दे, खुदा मैं चेंज होना चाहता हूं या मैं चेंज होना चाहती हूं, मेरे हालात ठीक हो जाएं। सब कुछ कहते हैं, अच्छी बात है, हम बड़ी दुआ करते हैं, लेकिन अपनी सोच नहीं बदलते और अपना आप नहीं बदलते। खुदा बदलना चाहता है, यकीनन आप जो कुछ कहते हैं खुदा करना चाहता है, लेकिन इसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है। आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। लिखा है अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाकर करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ क्या हो? मतवज्जो। ध्यान करो यार, मेरी तरफ देख है, किसी तरफ देखना है? खुदा की तरफ देखना है, लोगों की तरफ नहीं। लोग दुनिया क्या कर रही है, दुनिया वाले क्या करे, रिश्तेदार क्या करे, बहन भाई क्या कर रहे हैं, आपको क्या कह रहे हैं, आपके बच्चे क्या हैं, आप छोड़ दे। ये सारे रिश्ते यहां के हैं, इनको छोड़कर पहले अपने खुदा को इज्जत दे। अव्वल दर्जा खुदा को है, ये दुनिया के रिश्ते जो हैं ये सेकंड है, ये दूसरी बात है, ये दूसरा दर्जा है। पहला दर्जा खुदा का है। कलाम खुदा में लिखा है जो मुझसे ज्यादा किसी को अजीज रखता है मेरे लायक ही नहीं। लिखा है मेरी तरफ मुतवज्जो हो, क्योंकि खुदावंद अपने खुदा की तरफ क्या हो तो मुतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम मेहरबान कहर करने में, दीमा शफकत और वफा में, गनी अजाब नाजल करने से क्या रहता जी? वो अब भी चाहता है मेरी बेटी वापस आए, मेरा बेटा वापस लौट आए। वो आज भी चाहता है कि आप तब्दील हो जाएं, अपनी बुरी रविश से, अपने बुरे रवैये से, अपनी बुरी अदा से, हरकत से बाज आ जाएं। खुदा आपको बदलना चाहता है, खुदा आपको अपने हाथों में लेकर बरकत देना चाहता है, बहाल करना चाहता है। मेरे अजीजों, खुदा की कुदरत यहां पर मौजूद है, अपने आप को आज खाली कर। लिखा है कौन कहता है, कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े। खुदा का गजब तो कोई नहीं है, लेकिन कहने बरकता भी कोई नहीं। अगर खुदा आपके साथ नाराज नहीं तो फिर बरकते होना प्लस पॉइंट है। आगे लिखा है 15वीं आयत में लिखा है सिय्योन में नरसिंगा फूंको और रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो। कभी हमने एक दिन ऐसा कहा हो कि ये दिन जो है हमने खुदा का है, दुनिया का नहीं, ये दिन मेरे खुदा का है, ये दिन मैंने अपने खुदा को देना। जिस तरह कहते हैं ना आज का दिन मैं अपने बच्चों को देना है, भाई मैं अपनी फैमिली को देना है। एक बंदा उधर बैठे, बच्चे बार बार इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खाने पीने का कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि बस इधर ही बैठ जाए, कोई बात नहीं। बच्चों को थोड़ा सा समझाएं, कोशिश करें। लिखा है रोजे के लिए क्या करो जी? रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो।
मुकद्दस करना और मुकद्दस महफिल फराहम करो, यानी कि पाक लोग, खुदावंद के लोगों को फराहम करो। जिस दिन में आपने मुकर्रर किया हो उस दिन में खुदा के लोग आपके साथ शुक्रगुजारी करें और आपके लिए दस्ते दुआ बुलंद करें, ताकि आपके खानदान पर आने वाली उफात और आने वाली तमाम मुसीबतों को वो रोक सकें। खुदावंद के पाक नाम से आप पर आने वाली जो तमाम मुश्किलातें हैं वो टल सकें, क्योंकि रोजे के लिए बुला रहा है खुदा। जिस तरह पिछले बाप में हम पढ़े तो लोग जो हैं वो बर्बादी हो चुकी है फसलों की, वो क्या कर रहे हैं? मातम कर रहे हैं। खुश्क साहली थी, लेकिन अब खुदा कह रहा है कि जो पिछले दौर में खुश्क साहली खानदान में रही, नापाकी रही, लड़ाई झगड़े रहे, अगर आप रोजा रखकर भी इसी हालत में रहें, लड़ते झगड़ते, या आपका रवैया ठीक ना हो अपनों के साथ या दूसरों के साथ, तो फिर ठीक नहीं है। लिखा है रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, तुम लोगों को जमा करो और जमात को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, शीरखोरों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठड़ी से और दुल्हन अपने खिलवत खाने से निकल आए। क्या करे जी? दुल्हन अपनी क्या करे? कोठड़ी से, यानी कि अपनी जिस्मानी जरूरतों से ज्यादा अपनी रूहानी जरूरत को दर्जा दे। रूहानी जरूरत बहुत उत्तम है। दुल्हन के लिए उसकी जो खुशी के दिन हैं उनको खुदा के लिए छोड़ना। जिस दिन आपने मुकद्दस रखा हो उस दिन ख्वाह दुल्हा हो या दुल्हन हो, वो भी फराहम हो जाए अपने खुदा के लिए। और अगली बात है कहन, यानी खुदावंद के खादम ड्योड़ी और कुर्बानगाह के दरमियान गिरियाजारी और मातम करें, गिरियाजारी करें और कहें, ऐ खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर। खुदावंद के खादम गिरियाजारी करें, मातम करें, रोए खुदा के हुजूर। जो दिन मुकद्दस हो उस दिन में खुदा के लोगों के लिए हाथ उठाए, खुदा ये कौम तबाही में न चले जाए, खुदा ये मेरी बेटियां, खुदा ये मेरे बेटे नापाकी में बुरी हालत में न चले जाए। हम सब कुछ करते हैं, कभी अपने घर में मुकद्दस महफिल फराहम नहीं करते। जब हम करते हैं, आप देखें, आप पुराने दौर में चले जाएं, हमारे खानदानों का, अपने आबाओ जदाद का हाल देखें। एक फर्द कमाने वाला था, सारा खानदान खाने वाला होता था, लेकिन सुकून था, खुशी थी, मोहब्बत थी और बहुत सी और बहालियां, शादमानियां थी और बहुत से प्रॉब्लम नहीं थे। एक बंदा कमाने वाला होता था और एक दूसरे के साथ मोहब्बत होती थी। अब भाई भाई के लिए कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं जानता। बहन बहन को रिश्तों में खुश्क साहली आ चुकी है, खानदानों में खुश्क साहली आ चुकी है और हम खुदा को अव्वल दर्जा नहीं दे रहे। वो लोग अनपढ़ जरूर थे लेकिन खुदा के साथ दिली मोहब्बत करने वाले थे। आज के लोग पढ़े जरूर हैं लेकिन खुदा के साथ दिल से मोहब्बत नहीं है। वो कलाम को जानते हुए भी नाफरमानी करते हैं, कलाम को जानते हुए भी वो अपनी ऐशो इशरत को, अपनी जिस्म की हवस को ज्यादा जरूरी समझते हैं, अपने तमाम दुनिया के कामों को ज्यादा जरूरी समझते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का कलाम कहता है कि इस तरह जो मुकद्दस लोग हैं अपनी कौम के लिए, अपनी कलीसिया के लिए क्या करें? रोए, गिरियाजारी करें। क्या करें? कहें गिरियाजारी करें और कहें, ऐ खुदावन अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करे। क्यों दूसरे हुकूमत करें? कभी आपने ये ख्याल किया हम पर क्यों कोई दूसरा हुकूमत करे? इस बात के हम कहते कोई बात नहीं, वो आगे निकलेगी अच्छी बात है, लेकिन
अच्छी बात है कि आपके बच्चे, आपकी बच्चियां आगे निकले खुदा के जलाल के लिए। ये हाथ उठाएं, आसमान खुले, ये हाथ उठाएं, आसमान खुले, और ये अपने मुंह को खोलें तो बंधन टूटे, इब्लीस शर्मिंदा हो। आपने रोजा रखा हो और लश्करों का खुदा की आवाज सुनने के लिए वो आ जाए। यशायाह नबी की किताब में लिखा है, जब तू रोजा रखेगा तू फरमाएगा, वो जवाब देगा, तू वो कहेगा मैं यहां हूं, क्योंकि वो जब हम पुकारते हैं वो जवाब देने के लिए मौजूद हो जाता है। आप जब खाकसारी के साथ उसकी मर्जी के मुताबिक आ जाते हैं, वो आपकी दुआओं को कबूल करने के लिए आ मौजूद होता है। वो हर जगह पर मौजूद होता है, लेकिन वो मुकद्दसों की दुआओं पर दिल लगाता है और मुकद्दसों को वो बहाल करना चाहता है। जब लोग उसकी तरफ रुजू होते हैं, आज हम दुनिया के कामों की तरफ तो रुजू होते हैं, हम अपने खुदा की तरफ बहुत कम रुजू होते हैं। खुदा उनके लोगों, आज का पैगाम यह है कि खुदा उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाए, ध्यान कर ले, दिल लगा ले। आज ध्यान करना है। अक्सर बच्चे मोबाइल देख रहे हो तो मां बाप कह रहा होता है, बेटा मेरी बात सुनो, मैं सुन रहा हूं, आप करे बात, वो मोबाइल में बिजी होते हैं। मियां बीवी कभी एक दूसरे को बात करना चाहें, मोबाइल ने हमारे दरमियान बहुत सी खराबियां डाल दी हैं। मोबाइल को टाइम, मखसूस टाइम दें। बहुत दफा हम मोबाइल के साथ चिपके रहते हैं, और फिर खराबी रहती है। हम मूवीज और बहुत सी चीजें ऐसी देखते हैं, हमारे आगे ऐसी चीजें आती हैं जिसकी तरफ देखकर हमारा ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। हम मुकद्दस महफिल फराहम करनी है। आमीन। मुतवज्जो होकर क्या करना है, और मुतवज्जो होना है और रुजू करना है। इस तरह रुजू होते हैं क्या, मुलाकी की किताब में लिखा है, तुम मेरी तरफ रुजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू होऊंगा। क्या तो आप उसकी तरफ रुजू हो रहे हैं? हम कहते हैं किस बात के लिए रुजू हूं? नाफरमानी की है, आपने खुदा की हुक्मों को तोड़ा है। वो भी कहते थे हमने किस बात पर तुझे रुजू हो, किस चीज के लिए ठगा, क्या किया? वो कहता मेरी पहले रुजू तो हो, अगली बात बात की है। मजहब पर आहो नाला है, खानदानों में दरार आ चुकी है। मुलाकी बड़ी खूबसूरत किताब है मुलाकी की, वहां पर वो पहले ही बापों में कहता है कि तेरी और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान क्या है, तेरा रिलेशन ठीक नहीं है। खुदा कैसे, इससे मैं नाराज हूं। मजहब पर आहो डाला है, तूने बेवफाई की है अपने शोहर से। बीवी को कहता है तूने अपनी शोहर से बेवफाई की, शोहर को कहता है कि तूने अपनी बीवी से बेवफाई की है। इस वजह से मजहब पर आहो नाला है, आंसुओं की ऐसी कसरत है कि खुदा तुम्हारे हदियों को कबूल ना करेगा और खुदा तुम्हारी नजरों को पसंद ना करेगा, क्योंकि खुदा के मजहब पर पाक लोगों की जरूरत है। बदन की पाकीज़गी से ज्यादा हमारा रिलेशन पाक होना जरूरी है। बदन को पाक करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने रिलेशन को जो खुदा के साथ है, हम कहां पर खड़े हैं? खुदा कहता है मैं जवाब देता हूं। खुदा कहता है अभी बाज हो, अभी मेरी तरफ रुजू करो, मेरी तरफ रुजू हो। जिस तरह ननवा के लोगों ने खुदा की तरफ रुजू होकर क्या किया, रुजू हो गए, खाकसार हो गए। खासवाम बादशाह से लेके जानवर तक टाट रात में मुलबस हो गए और खुदा के हुजूर चीखो पुकार, खुदा रहम कर दे, अपनी बुरी रविश से बाज आ गए और खुदा ने उनको माफ कर दिया।
खुदा ने उनको माफ कर दिया। सुनिएगा, इसी तरह जिस तरह आसर मलका के दौर में भी ऐसा हुआ। आसर मलका ने क्या किया अपने लोगों के लिए? उससे पहले जब नामा पहुंचा, जिस सूबा में यहूदी रहते थे, बड़ा मातम हुआ और बड़ा कोहराम मच गया। इतने दिनों के बाद हम मारे जाएंगे। लोग चीखने लगे हैं, रोने लगे हैं। मेरे भाइयों, आज भी रोने की उसके हुजूर जरूरत है। इससे पहले कि आपका भलावा आ जाए, इससे पहले कि आप गुनाह में, हलाकत में मारे जाएं, इससे पहले कि खुदा आपसे नाराज हो जाए और आप इस जहाने फानी से कूच कर जाएं, आपको खुदा के हुजूर आने की जरूरत है। आपको पता चल चुका है हम इस दुनिया में क्या है, थोड़े दिनों के लिए हैं। हम परदेसी हैं। उससे पहले कि खुदा आपको बुला ले, इससे पहले आपका रवैया ठीक हो जाए, आपका तल्लुक खुदा के साथ ठीक हो जाए, आपका राबता खुदा के साथ ठीक हो जाए, आप लश्करों के खुदा के साथ, जो आपका बाप है, वो आपको बरकत देने के लिए मौजूद हो जाए। हालेलुया। इस तरह का रोजा, वो जब रो रहे थे तो खुदा ने उन पर रहम किया। अभी नामा पहुंचा, उसके बाद आसर ने सारे सूबों में भेज दिया कि मैं और मेरी सहेलियां भी 3 दिन तक रोजा रखेंगी। और जब उन्होंने रोजा रखा तो खुदा ने उस कौम को बचा लिया। आज भी खुदा हमें बचाना चाहता है। आज भी जब उसके हुजूर हम कहते किस मकसद का रोजा रखे, आप बहुत ठीक हैं, आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोजा तो हमारा मकसद क्या है। आपके बच्चों में बहुत से प्रॉब्लम होंगे, आपके मियां बीवी के अंदर प्रॉब्लम होंगे, आपके रिश्तेदारों के अंदर प्रॉब्लम होंगे, आप अपनी जिंदगी के अंदर आप सेटिस्फाई शायद ना हो। अपने लिए रोजा रखें, कहीं खुदा आज मुझे ले। आई खुदा के हुजूर आज आंसुओं की कसरत के साथ कहें, खुदा आज मुझे ले ले। खुदा मैं तेरी बेटी हूं, खुदा मेरी हालत बदल दे, खुदा मेरे हालात बदल दे, खुदा मुझे ले ले। जो चीज उसके हाथों में आ जाती है मेरे भाइयों वो पाक हो जाती है, मेरी बहनों वो मुकद्दस हो जाती है। उसके हाथों में आने वाले लोग पहली हालत में नहीं रहते, वो जिस हालत में आते हैं उस हालत से बदलकर बेहतर हालत में जाते हैं। उसके हाथों में अगर चंद रोटियां आ जाए वो हजारों को शेयर करने का वसीला बन जाती है। और उसके हाथों में अगर कोई बीमार आ जाए तंदुरुस्त हो जाता है, अगर अंधा आ जाए आंखें खुल जाती हैं, अगर बहरा आ जाए कान खुल जाते हैं, अगर गूंगा जस बोलने वाला बन जाता है, अगर मेरे शीशो जकड़ा हुआ आ जाए तो बहाल हो जाता है, अगर मुर्दा आ जाए तो खुदा उनके लोगों वो जिंदगी लेकर जाता है। कि ये जिंदगी के मम्मा के साथ मुलाकात जब हो जाती है, जब यीशु करे रहा तो बेड़ियां खुल जांदियां, जब खून ओदा ले ला तो बदियां तुल जांदियां। हालेलुया, हालेलुया। हम कहते हैं, हम दूसरों की तरफ देखते हैं, हम गीत गाते हैं, आप जड़े बच्चे ने किसे नु की खोलन, पत्थर ते मिट्टी दे रब की में बोलन। जदों खून ओदा लईए ला ते बदियां तुल जांदियां, जदों यीशु दवे हाथ ला ते अखियां खुल जांदियां। हालेलुया। आज वाकई यीशु यहां पर मौजूद है, वाकई आप यकीन करते हैं यहां पर मौजूद है। आए फिर हम चंद लम्हे उसको कहें खुदा उससे बगलगीर हो जाए, अमान की आंखों से उसको आए बगलगीर हो जाए, उसको छू लीजिए, उसको जाने ना दे। जिस तरह यकूब ने कहा जब तक तू मुझे बरकत ना देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। जब तक तू मुझे बरकत ना देगा, उसने बड़ा कहा मुझे छोड़ दे, उसने कहा जब तक तू मुझे बरकत ना देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आज आपके दरमियान खुदा मौजूद है। आप कहें खुदा मैं आज पहली हालत जिस तरह आई हूं इस हालत में नहीं जाना चाहती, मेरी जिंदगी बदल जाए। खुदा बाप मैं पाक होकर मैं बेहतर हालत में जो तेरी मर्जी के मुताबिक है उस हालत में जाना चाहती हूं। मेरी नमाजें
روزے، ریاضتیں، رفاقتیں، شیافتیں تیری مرضی کے مطابق ہو جائیں. ہیلیلویا. خدا انداز کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے. چند لمحے میری بیٹی آنکھیں بند کریں. ہیلیلویا ہیلیلویا. چند لمحے آپ کے پاس، چند لمحے دعا کیجیے اور کہیے خدا مجھے قبول کر، مجھے پاک کر، مجھے مقدس کر، مجھے بابرکت بنا دے، میری سوچ بدل دے. آئی کلوز بیٹا. ہیلیلویا ہیلیلویا. رشا قتل ربا بابا شکتل ربی رزا قتل. ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا. اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں. ہیلیلویا. باپ یہ